Hi, good morning everyone. So another day, another morning in Rangat Guest House. I'm always fascinated with this place. This place has many significant because of its located in a very high altitude, and it's surrounded by a really nice forest, and it is calm and serene. And it's very difficult to get such kind of serene place anywhere in Andaman Nicobar Island. Though it is not surrounded by beach, but it has its own comfort. That's because it has you don't need air condition to on while you sleep during night or day. It is always has a fantastic climate. So now I'll drive down to Mayabandar, and on my way I'll have breakfast, and then I'll go to Rangat office for some pending, some pending work. I'll approve, and from there I'll go to then Mayabandar, and on the way I'll have to visit in this Willy Ground office. So see, this is I'm driving down. This is the so I'm just going down. It's quite a nice altitude here. You could see that. So these are all nostalgic place for me, because I have been in this kind of area place for last more than 10 years, and for this entire 10 year this visiting place, and on I really don't like to stay at home. That's been a habit of mine. I have been addicted rather to visit place and staying some other area, interacting with people. That addiction is to be always on the move, and probably that's how I have spent such a long time in a particular place, Northern Andaman, from family and all. So you need to motivate yourself when you are alone, and I have found the perfect way to get yourself motivated and also to stay in a particular place. That's all because I keep on traveling a lot. So travel has become my new addiction. So now we are gonna entering रंगत बाज़ार. इट इज़ तो छोटी बाज़ार है, पर मिडिल अंडमान की सबसे बड़ा टाउन है, और नॉर्थन अंडमान की सेकंड टाउन है दिस रंगत. दिस नथिंग मच टू एक्सप्लोर इन रंगत बाज़ार, क्योंकि ये सराउंडिंग जो आसपास की जितने लोग हैं, जैसे आपकी कुछ आसपास की एरिया होगा, जैसा बकुलतला हो गया, ऐसी सराउंडिंग एरिया की जो सबसे बड़ी टाउन है ये. तो इवनिंग के वक्त मेरे ख्याल से और ज़्यादा सब भीड़ होती है. दिस इज़ द ऑफिस टाइम, एंड नाउ पीपल आर ऑलरेडी लिव फॉर ऑफिस, और बाकी लोग तो जो फार्म में काम करते हैं तो अपने घर पे फार्म की काम कर रहा होगा, फार्मिंग एंड देन अदर थिंग. ये रंगत की जो सड़कें हैं, ये बहुत साल लगी बाज़ार की सड़कें बनने के लिए, तो अब कम से कम बन गया है और आप बहुत कंफर्टेबली ड्राइव कर सकते हो. अब मैं सोच रहा हूँ मैं ब्रेकफास्ट कहाँ से करूँ. ब्रेकफास्ट अगर मैं नींबू तला से करूँ तो बहुत अच्छा है, क्योंकि नींबू तला में बहुत अच्छी ब्रेकफास्ट होती है. आई रियली लव दैट प्लेस. ये देख रहे हो कि एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग की, तो चलो नींबू तला में ही चलते हैं. आई विल टेक यू टू नींबू तला.
और वहाँ पर ब्रेकफास्ट करते हैं। एक तमिल सिटीजन मतलब तमिल फैमिली है और उनकी जो आई रियली रेट दैट द तमिल रेस्टोरेंट, इट इज़ नंबर आई रेट इट नंबर 1 in terms of idli and dosha. It is really tasty. They have got that this taste of the especially in Tamil Nadu taste, where chutney and other sambar have their Tamil Nadu and Chennai aroma, and it's quite healthy also. They don't add any extra oil, masala at all, and so everything is perfect there. I also told my friend कि अगर खाना है तो इडली डोसा, undoubtedly the best idli dosa in the Andaman Nicobar would be in that hotel in Nimbutala. तो चलो वहीं लेके चलते हैं आपको। है तो हम निम्बूतला आ गए और निम्बूतला से अब हम उतरेंगे। यहाँ से देख सकते हो आप, मैं आपको दिखा रहा हूँ। सो ये हम निम्बूतला के जो चढ़ाई है वो उतार रहा है और यहाँ से आपकी रोड की हालत सच में ख़राब है कुछ कुछ जगह पर। कल जो हमने ड्राइव किया पोर्टर से लेकर अफदर तक बहुत अच्छी बनने जा रही है और काफ़ी इम्प्रूवमेंट भी हुआ है। दैट्स परहैप्स बिकॉज द अथॉरिटी, द कंस्ट्रक्शन एजेंसी हैज़ गॉट अ लॉट ऑफ टाइम एंड फेवरेबल क्लाइमेट ड्यू टू दिस क्लाइमेट चेंज रहा था। तो होता है ना कि कहीं बुरा होता है तो कहीं अच्छा भी हो जाता है। सो बट एनीवे क्लाइमेट चेंज इज नॉट एट ऑल गुड। वी डोंट हैव एनी रेन हियर, apart from this occasional drizzling and passing shower. So ये देख लो यहाँ की पेट्रोल पंप है। तो अब हम जाएंगे सीधे निम्बूतला। निम्बूतला में ब्रेकफास्ट, जो यमी ब्रेकफास्ट की मैं बात कर रहा हूँ, वो यमी ब्रेकफास्ट हम खाएंगे। और देखो क्या होता है ना कि मैं बिल्कुल एक जनरल सी बातें बोल रहा हूँ कि अंडमान जैसी जगह जहाँ पर ये हमारी जो 4th जनरेशन है अंडमान में, देयर इज नथिंग मच टू डू इन अंडमान बेसिकली। व्हेन यू आर ए गवर्नमेंट सर्वेंट, फाइन, यू विल बी पोस्टेड समवेयर एंड देन अगेन यू विल बी ट्रांसफर्ड। तो ये ट्रांसफर और पोस्टिंग के चक्कर पे आपकी पूरी लाइफ निकल जाएगी। और यहाँ पर छोटी सी जगह है, यू डोंट फाइंड मच एनीथिंग टू डू। But through my video, I would like to express, also share my my experience in Andaman for the last 10 years. You keep on traveling a lot. Everyone has got their bike or a good car. Now I tell everyone, just involve yourself in driving, go to place, explore new island. That's how you can keep your mental balance fit. Otherwise, even in Portdoor also, there is nothing much to do in unlike mainland, where weekend will be decided and then it will be like that from driving from Pune to Hyderabad, like kind of thing. Okay, here there is nothing much to do. तो ये देख लो भाई, निम्बूतला जो थोड़ी सी जंक्शन है, ये निम्बूतला बाजार तो है नहीं, ठीक है। प्रॉपर जो निम्बूतला बाजार है वो हम जा रहे हैं और वहाँ पर काफ़ी अच्छी बाजार बन गई है। एंड व्हाट इज़ अ गुड थिंग, आई विल शो यू। थोड़ी देर की ही ड्राइविंग है। आई रिक्वेस्ट ग्राम पंचायत टू कंस्ट्रक्ट दिस रोड, रादर प्लीज डू सम रेनोवेशन ऑफ दिस रोड, क्योंकि ये काफ़ी एक न्यू टूरिस्ट एरिया बन के आया है इन अंडमान इन टर्म्स ऑफ रमन बगीचा। सो मूवमेंट ऑफ पीपल इज ऑलवेज रियली गुड इन रमन बगीचा, particularly in the weekend. So every time, even not even in weekend also, you will find some people every time in the weekend also, some 20 to 30 people will be always there. तो अब जो है रमैया जी वेट कर रहे हैं मेरा, तो
अपने रमैया भाई को लेके निकलते, देख लो कैसी वेट कर रहा है। अब उनको मोटू भाई को बैठा लेते हैं। हमारे साथ अभी रमैया भाई जुड़े हुए हैं, सो विल गो फॉर ब्रेकफास्ट, उसके बाद ऑफिस देखा जाएगा। ब्रेकफास्ट तो कर लेते हैं और फिर मैं आपको दिखाऊंगा अकेले। ऐसे लोकेशन कितना दूरी है सर, दिखाएंगे इसमें? नहीं दिखाएंगे नहीं, ये तो वीडियो हो रहा है अच्छा। पूरे जगह का। लोकेशन सब कुछ इसमें है, वो तो मैं नहीं चलाता। तो बस मैं यही बोल रहा था ग्राम पंचायत को, भाई आप सड़कें थोड़ा सा रिनोवेट कर लो ताकि और अच्छा हो। जी। वीडियो कर रहा है ना सर? रमैया भाई ये पूछ रहे हैं कि वीडियो चल रहा है, तो मैं ये बता रहा हूँ कि भाई वीडियो चल रहा है और मैं पूरे सड़कें दिखा रहा हूँ। और अब जो है थोड़ी देर में हम पहुँच जाएंगे नींबूतला मार्केट। नींबूतला मार्केट बहुत अच्छा डेवलप हुआ है। मैं ये बोलूँगा कि चलो आपको उसके बाद, जब जाने से पहले अगर बोल दूँ तो फिर जाने के बाद, पहुँचने के बाद क्या बोलूँ, तो थोड़ा सा वेट कर लो आप। ये रोड को तो रिपेयर करना ही चाहिए। राम सर आप रोड बना लो, ये ब्लॉक के थ्रू आपके पास ये फरियाद पहुंच जाएगा। तो चलो अब जो है आप देख सकते हो कि हम पहुंच गए हैं नींबूतला मार्केट। और मैं ये बोल सकता हूँ कि अंडमान में पूरे अगर फिशरमैन कम्युनिटी की कोई मार्केट है तो इससे बेहतर मार्केट है। काफ़ी साफ सुथरा रहते हैं। फिश मार्केट में भी फिश है, मैंने देखा है, ग्रुपर फिश। और आप देख सकते हो इट्स रियली अ ब्यूटीफुल मार्केट। हर एक एंगल पे यहाँ साफ सुथरा है, ब्रॉड रोड है, तो उसमें डेफिनेटली पंचायत अधिकारी की काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी और रोल रहा होगा। अब वी हैव ब्रेकफास्ट एंड आई होप दैट आई विल गेट माय फेवरेट इडली डोसा। और मैं पूछूंगा उनसे कि है कि नहीं। और अन्ना है ना, ब्रेकफास्ट मिलेगा? है? चलो तो अन्ना ने बोल दिया है और हम चलते हैं अभी। सो हाय फ्रेंड्स, अब मैं रंगत ऑफिस में यानी कि नींबूतला ऑफिस में मैं अपना काम फिनिश करने के बाद अब मैं ये जो नींबूतला की चौक है NH4 है, एंड नाउ आई विल ड्राइव इनटू द मोस्ट ब्यूटीफुल road in the Andaman Nicobar Island. This road will, it goes through this beautiful sea beach, and I'll take you to those rocky seashore, which I have shown you many a time. And today is special because I have got this mobile 360-degree angle stand. So let's explore this beautiful place. From here, we'll cross Amkunj. From Amkunj to Morris Dera, then Dhani Nala. Probably it is not possible to show you Dhani Nala क्योंकि फिर हमें उतर के फिर बहुत काफ़ी डिस्टेंस चलना होगा। So probably I don't have time for that. Okay, but चलो मैं आपको दिखाता हूँ ड्राइव करके। यहाँ से लेके पूरे हम जाएंगे। यहाँ से मैं स्टॉप करूँगा सिर्फ एक ही पॉइंट, जहाँ पर अगेन आई विल हैव ए टी ब्रेक। जो आपकी क्या नाम है जगह का, जस्ट थोड़ा सा आमकुंज से आगे धनी नाला से आगे आपको, चलो मैं बताऊंगा आपको। चलो सो ये है रोड और मैं आपको दिखाता हूँ। चलो गाना सुनते सुनते जाएंगे भाई, और मजा आएगा।
ये सब जो है ना बहुत mesmerizing व्यू है. और coming back to my concern and my agenda, and the important thing is the climate change. चलो, पर ये जो गाना चल रहा है ना, ये काफ़ी रोमांटिक गाना है. एंड दिस इज़ एब्सोल्युटली एक्चुअली रोमांटिक ड्राइव. आप वीडियो भी कर रहे हो और दिस सॉन्ग यू आर प्लेइंग दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग थैंक्स टू यूट्यूब. अभी भी रोड स्मूथ है. वैसे पूरे वीडियो दिखाऊंगा आपको पूरे रास्ते की, सड़कें की, जब मैं ट्रांसफर होकर चला जाऊंगा. सो दिस विल बी ए नॉस्टैल्जिक फीलिंग फॉर मी, पूरे रोड ड्राइव करता हुआ. थोड़ी देर में आपको जो है ना समुंदर वाली रोड आएगी. आज थोड़ा सा गर्मी है. आई होप देयर विल बी शावर बाय आफ्टरनून. क्या होगा बताओ लाइफ से टेंशन लेके यार. ठीक है, जो होना तो वो होगा ही, पर हमारे काम यह होता है ना, अपनी काम को बखूबी से कर लो और जो है आप उस हर एक पल को जीने की कोशिश कर लो. क्योंकि आपको कहीं ना कहीं आपको सारी दुनिया छोड़ के कहीं ना कहीं कभी ना कभी आपको एक दिन जाना ही होगा. तो चलो, हम ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं वो ब्यूटीफुल बीच वाली एरिया, जहाँ से पूरे कम से कम मेरे ख्याल से 7-8 किलोमीटर तो जो है ऑन द बीच विल ड्राइव. दिस इज़ रियली फैबुलस. आई नेवर एवर have a feeling that is enough of crossing this road. I always love this road. कभी जो content feeling कभी आया नहीं. This is my great appetite for driving on this road is always there. I always crave to drive on this road. तो चलो मैं आपको ये दिखाता हूँ ये रोड. सा साइड कर देते हैं तो और व्यू मिलेगी. आज शायद बारिश हो सकती है. कहीं कहीं जैमर लगा हुआ है मेरे ख्याल से. रडार रखी हुई है यहाँ पर. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रडार इंस्टॉल किए हैं यहाँ. द फेवरेट सॉन्ग जो मुझे बहुत पसंद आया, हमें नहीं मेरे ख्याल से सारे लोग, बहुत ही क्लीन एंड सूदिंग गाना.
इसे बोलते हैं सोलो ट्रिप, सोलो ड्राइविंग। और मैंने अपने लाइफ में पूरे 10 साल में ना भरपूर सोलो ट्रिप और सोलो ड्राइविंग की है। सच में एंजॉइंग है भाई। ये रोड की रिनोवेशन होना चाहिए, बहुत बैडली ज़रूरत है यार। वी नीड इट डेस्परेटली इन फैक्ट। आप देख सकते हो ना, बस यार अथॉरिटी से रिक्वेस्ट है कि भाई जल्दी से जल्दी ये रोड की रिनोवेशन कर दे यार, बहुत अच्छे से करे, ताकि 2, 2.5, 3 साल 4 साल छूने की जरूरत नहीं होगा। बट सैडली कंस्ट्रक्शन एजेंसी आर नॉट अवेलेबल हियर एंड दैट नॉट डूइंग एनी काइंड ऑफ रिपेयरिंग वर्क। हाई टाइड है अब। Look at this beautiful, blue and sky blue colors. This is amazing यार। यहाँ तो क्या होना चाहिए था, थोड़ा सा छोटा बहुत रिजॉर्ट होना चाहिए था। चलो पंचवटी से हम चलेंगे
पूरे बेटापुर होके बिल्ली ग्राउंड। बहुत ही मेमोरेबल प्लेस है। I would say what is the big asset in your life? I would say not the property, not your bank balance, not your car, or then not land or the house. It is the beautiful memory which you left in certain place. When you cherish those memories, that actually gives you a beautiful feeling, जिसको बोलते हैं स्वैग। तो ये सारी जगह ना एक ब्यूटीफुल फीलिंग और एक मेमोरी है मेरे लिए। भी ड्राइव किया मैंने। भाई सब उड़ा के जा रहा है। बारिश नहीं है, अदरवाइज ये रोड एब्सोल्युटली डिफिकल्ट होती है ड्राइव पे। बेटापुर पहुंचने वाले हैं। बहुत यूनिक है बेटापुर। एक तो क्या है कि आपकी धनी नाला वाली सी बीच है, साथ साथ जो है आपकी IPNT की टूरिज्म डिपार्टमेंट की रिजॉर्ट है और मिस्टर बाबू राव की होम स्टे है। सो ओवर द ईयर मिस्टर बाबू राव हैव develop its own infrastructure by constructing a small quite luxurious hut, which I have already shown you in my previous in my other video. So
लोग भी हों, यहाँ पर इंटरप्राइजिंग हो रहा है। दिक्कत ये है ना मेनलैंड की ना, वी डोंट हैव द फ्लो ऑफ पीपल, वेरी लिमिटेड पीपल, सो एवरीथिंग इन अंडमान इज वेरी लिमिटेड इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, इट इज लिमिटेड इन टर्म्स ऑफ अपॉर्चुनिटी, इट इज लिमिटेड, यू नो। ये देख सकते हो ये सारी जगह जो है। यहाँ पर और एक है ब्लिस बोल के, ब्लिस रिजॉर्ट है प्रकाश की, तो वो एक बहुत अच्छा है। ये इसी एरिया पे विद इन ए रेडियस ऑफ 1 किलोमीटर और लेस देन 1 किलोमीटर यू हैव 3 रिजॉर्ट। सो आप आ सकते हो, यू कैन एंजॉय और हैव सम काइंड ऑफ रिलैक्स टाइम विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। So coming back, what is the difficulty in Andaman? Everything is limited, you know. Opportunities are limited, resources limited, and the flow of the people are very limited. So that is actually restraining business in Andaman. तो यही है भाई, मैंने तो पहले ही बोला कि आपको इस सिचुएशन पे अपने आप को डीमोटिवेट नहीं होना है, आपको एक्सप्लोर करते जाना है। अगर कोई नेचर लवर है, देयर आर प्लेंटी इन अंडमान। अगर बहुत सारे चीज़ लिमिटेड है मानता हूँ, पर एज फार एज नेचर, फॉरेस्ट, ओशन, सी बीच, इट्स एंडलेस एंडलेस मैन। ये जो स्ट्रेट रोड मुझे बहुत पसंद है। ड्राइव करते करते चलते हैं, गाना मज़ा नहीं आ रहा है लोगों को। गाना नहीं है तो खुद गाना गा लो। चलो इसके बाद हम आपको दिल्ली ग्राउंड ऑफिस पहुंच के आपसे बात करते हैं। वहाँ पर अपने बंदे सब वेट कर रहा है।